Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on different types of book selection criteria and formulas. Now we are discussing on generally two types of selection. Okay. So after watching the different types of criteria, different types of formula, different types of theory, now we are going to watch current selection, types of selection. Okay, so this type of selection involve purchase title that are new or recently released. You are purchase the newest novel by Stephen King or an award winning biography that came out last year. Okay, so after name we will understand the meaning of current selection. Okay, those books who are published newly in current year, and if we are purchase such kind of book, if we are acquire such a kind of book for the library collection, to develop the collection, that is called the current selection. Okay, so it is very clear meaning about that. You are purchasing the newest novel by Stephen King or an award winning biography that came out in last year. Those books are published in last years and it is newly revised in current year, even though all these are called current selection. Okay, such books are also categorized under the current books. Then retrospective selection, in some cases you go back, buy and purchase material that were published during an earlier time. In some cases you go back, buy and purchase material that were published during an earlier time. Means those books who are which are published in the past, that is called retrospective selection, retrospective material. Okay, in some cases you go back and purchase material that were published during earlier time. When you do anything retrospectively, you are going back in time. Retrospective acquisition means you are filling in gaps or buying historically significant resources that you should have in your collection. This type of selection often occurs when a new programs is added, such as a specialization in physical therapy, or a topic suddenly become popular. So this type of selection often occur when a new program is added, such as a specialization in physical therapy, or topic suddenly become popular. So retrospective collection or selection, it is a kind of selection in which this selection is come there, and when you do retrospectively, you are going back in time. Retrospective acquisition means you are filling gaps or buying historically significant resources that you should have in your collection. So this type of selection often occur when new program is added, such as a specialization in physical therapy, or topic suddenly become पॉपुलर. ओके, तो इस तरह से कोई टॉपिक सडनली पॉपुलर हुआ और इमरजेंस हुआ, तो इस तरह से
टॉपिक मटेरियल का हम सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट नेटिंग वॉज डिस्कवर्ड rediscovered by many people few years ago. These are older materials, and for retrospective acquisitions library will also consider the following criteria. Okay, तो इस तरह से जो ओल्डर कलेक्शन होता है, ओल्डर मटेरियल होता है, उसको जब हम सिलेक्शन करते हैं कुछ बेसिस पर, दोज हु आर नेटेड इन करंट, दैट इज कॉल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया कौन सा यूज होता है उसमें? रिसर्च इंपॉर्टेंस टू द कलेक्शन, रिसर्च वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रिजर्वेशन, लाइब्रेरी एक्विजिशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, सिलेक्ट, कंट्रोल, मेंटेनेंस, स्टॉक, वेरिफिकेशन। ओके, तो इस तरह से ये सभी बातें बुक सिलेक्शन में आती है। उसमें बुक सिलेक्शन थ्योरी, बुक सिलेक्शन क्राइटेरिया, बुक सिलेक्शन जो मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। उसके बाद बुक सिलेक्शन की कौन सी दो मेथड है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। और नाउ वी आर गोइंग टू वॉच नेक्स्ट टॉपिक, लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन। ओके, तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन यानी कि क्या, इसमें कौन सी चीज़ें आती है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन में कौन सी चीज़ें आती है ये हम यहाँ पर देखते हैं। एक्विजिशन, देन प्रोसेसिंग, देन एक्विजिशन के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद कैटलॉगिंग, classification, then circulation। ओके, और फिर रेफरेंस सेक्शन भी इसमें आता है। देन सीरियल और पीरियोडिकल सेक्शन। ओके, तो ये सभी सेक्शन और हाउसकीपिंग ऑपरेशन इसमें आते हैं। इसको फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी भी कहते हैं, ये सभी को पता है। जनरली ओवरऑल इनका स्टडी हमें लाइब्रेरी साइंस में करना पड़ता है, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली इसका उपयोग, इस्तेमाल हम लाइब्रेरी में करते हैं। और ये जो फंक्शन है और जो हाउसकीपिंग ऑपरेशन है, इसको ही हम सेक्शन बनाते हैं लाइब्रेरी में। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का यदि हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं तो उसमें इस नाम से अलग अलग सेक्शन रहते हैं और इसके अंतर्गत हाउसकीपिंग ऑपरेशन इसमें चलती है। तो एक्विजिशन एक है, प्रोसेसिंग सेक्शन होता है, कैटलॉगिंग सेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन सेक्शन होता है, सर्कुलेशन सेक्शन होता है, रेफरेंस सेक्शन होता है और पीरियोडिकल सेक्शन होता है। तो किस तरह से
बुक लाइब्रेरी में एंट्री करता है और किस तरह से वो प्रोसेस में आता है, सर्कुलेशन तक जाता है। तो एक्वायर यानी कि यहाँ पर परचेज किया जाता है। इसमें बुक सिलेक्शन आता है, प्लेस ऑर्डर, ओके, परचेज, ओके, ये सभी इसमें आता है। और रेफरेंस में फिर प्रोसेसिंग में लेबलिंग, ओके, ये सभी उसमें आता है। कैटलॉग में एंटर बुक्स इन कैटलॉग, ओके, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्लास नंबर उसको दिया जाता है क्लासिफिकेशन में, और उसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑथर अकॉर्डिंग, पब्लिकेशन, सभी चीज़ें ध्यान में रखकर यहाँ पर बुक का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और फिर ये सभी प्रोसेस होने के बाद एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन होने के बाद सभी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। फिर बुक आर केप्ट इन द सेल्फ फॉर यूजिंग पर्पज़ फॉर द रीडर्स और यूजर्स। तो यूजर के लिए, रीडिंग पर्पज़ के लिए बुक शेल्फ पे रखा जाता है, और वहाँ से फिर यूजर को जो बुक चाहिए होता है वह एक्वायर करके सर्कुलेशन में इश्यू रिटर्न करता है। यहाँ पर चेक इन एंड चेक आउट यहाँ पर होता है, ओके, उसे इश्यू और रिटर्न भी कहते हैं हम, ओके। तो इस तरह से सभी लाइब्रेरी की जो फंक्शन है या हाउसकीपिंग ऑपरेशन है, इस तरह से वो काम चलता है, ओके। और फिर उसके अलावा रेफरेंस सेक्शन में जो रेफरेंस बुक होते हैं, दोज बुक वी कांट इशू फॉर द स्टूडेंट, दे आर जस्ट रेफर, they are just kept in the library for refer purpose. Such books are kept in the reference section, so that is why it is called the reference section. And serial periodical, journals and magazines and periodicals are come under this section. All kinds of journals, magazines which are published serially or specific period, such kind of journals, magazines are kept in serial section or periodical section, okay। इस तरह से लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलते हैं, ओके। तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन किस तरह से चलते हैं, क्या चलता है यहाँ पर, क्या फॉर्मूलाज है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रेफरेंस सेक्शन, एक्विजिशन सेक्शन, प्रोसेसिंग सेक्शन, कैटलॉगिंग सेक्शन, क्लासिफिकेशन, सर्कुलेशन सेक्शन, सीरियल सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन में सब आता है, ओके। तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन में सभी चीज़ें, सभी टॉपिक, सभी एलिमेंट्स हमको यहाँ पर स्टडी करने होते हैं। ये सब मैनेजमेंट में आता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज, we try to understand with the help of this flow chart, and I think you maybe understand very well in overall topic. Now we are going through this lesson note. It will help us in details to understand the basic housekeeping function, that is called also operations, okay. So function, it is called also function as well as operations of library, irrespective of its type and size, may be grouped as acquisition, processing, use and maintenance. Generally A उनके फंक्शन या ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इस सभी जो सेक्शन हमने अभी देखे, जो फंक्शन हमने देखे, उसके
अंतर्गत डिवाइड होते हैं, इसके अंतर्गत डिवाइड होते हैं। देयर ऑपरेशन फॉलो सम डेफिनेट वर्क flows out routines and therefore are amendable computerizations. It means computers or groups of computers can perform routine clerical chores quickly and cheaply. Okay, तो इस तरह से हाउसकीपिंग ऑपरेशन यहाँ पर हम देखते हैं। और हाउसकीपिंग ऑपरेशन में जैसे हमने बताया एक्विजिशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है, कैटलॉगिंग आता है, फिर उसके बाद सर्कुलेशन आता है, रेफरेंस आता है और सीरियल कंट्रोल आता है या पीरियोडिकल सेक्शन आता है, और फिर उसके अलावा भी यूज एंड मेंटेनेंस इसमें आता है। ओके, द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ वन डिवीजन are different from that of the other division but are closely related and therefore combined efforts leads toward the better library services. We may use library as complex system which include subsystem and components. इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर टॉपिक है उसके अंतर्गत आते हैं, तो फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, वो हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। वी मे व्यू लाइब्रेरी एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम मीन्स हियर not only single activities is going on in the library but multi activities or multitasking jobs are going on in library, so that is why it is called the complex system. Okay, not only system, single system is work in the library, so library is, it is called system of subsystems. तो लाइब्रेरी को सिस्टम ऑफ सबसिस्टम कहा जाता है। दैट इज वाई देर आर many sections, many systems are come together and work together. तो इसलिए अनेक सेक्शन और अनेक सिस्टम एक साथ मिलकर काम करती है। तो उसमें दो मेन सिस्टम होती है। सब सिस्टम हमारा ऑपरेशन सब सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम, operational subsystem and administrative subsystem. Library housekeeping operation form part operational subsystem as per the analytical study of ISLIP Association for Information Management. Okay, तो जैसे कि हमने देखा कि सिस्टम के दो प्रकार होते हैं, एक ऑपरेशनल सबसिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सबसिस्टम, दो प्रकार होते हैं। ओके, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सबसिस्टम। तो ऐसे दो सिस्टम वहाँ पर होते हैं सिस्टम के, या लाइब्रेरी के। ओके, तो लाइब्रेरी ऑपरेशनल सिस्टम में आती है और उसके अंतर्गत काम करती है। As per the analytical study of ISLIP, the Association of Information Management UK, the operational subsystem may be divided into 4 further subdivision, namely acquisition, processing, use and maintenance. Within each division there are numbers of procedures
within each procedures there are activities, उसमें सभी activities आती है। कौन से activities इसमें आती है देखते हैं। Acquisition of document is one of the basic function associated with any library. The library must acquire and provide all relevant document to its user within its budgetary limitation. An acquisition subsystem performs four basic operations. They are selection, ordering, receiving, accessing of documents. Let's try and understand as how these operations are performed in library. Okay. तो इस तरह से लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार के एक्विजिशन सेक्शन होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल स्टडी मटेरियल हम एक्वायर करते हैं। एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन एसोसिएट विद एनी लाइब्रेरी। तो किसी भी लाइब्रेरी में बुक एक्वायर करना एक मेजर काम होता है, मेजर एक्टिविटी होती है, वह एक्विजिशन सेक्शन के अंतर्गत आता है। ओके। और फिर एक्विजिशन सेक्शन का ये मेन काम होता है, a library book must acquire and provide all the relevant document with users within budgetary limitation. जितना बजट यहाँ पर होता है उतना डॉक्यूमेंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यूजर के हिसाब से यहाँ पर हम खरीद करते हैं। एन एक्विजिशन सबसिस्टम परफॉर्म फॉर बेसिक ऑपरेशन। दे आर सिलेक्शन, ऑर्डरिंग, रिसीविंग, एक्सेशनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक्वायर करना पड़ता है बुक्स, और सभी प्रोसेस एज ए लाइब्रेरिंग करके हमको पता है, एज ए प्रोफेशनल करके हमको पता है, और स्टूडेंट को भी ये पता है कि लाइब्रेरी में किस तरह से बुक परचेज किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पढ़ी है। तो उसमें कौन सी एक्टिविटी जाती है? सिलेक्शन, जैसे कि हमने अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा, सिलेक्शन थ्योरी देखी, सिलेक्शन के जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है वो भी देखी, और टाइप्स कौन से सिलेक्शन के, इसके बारे में डिटेल हमने इसका स्टडी किया। तो दोज बुक रिकमेंडेड बाय द स्टूडेंट, बाय द टीचर्स, बाय द टीचर, बाय द फैकल्टीज। ओके, सच काइंड ऑफ बुक्स आर एक्वायर्ड इन द लाइब्रेरी। Such kind of books are selected for the library. Selection of document for library users. There is very responsible job and should be based on definite principle and accepted norms. For given library, the book budget is limited and it should be spent judiciously to provide service to optimum numbers of library users. Therefore, book selection become necessary. There are numbers of tools such bibliographies, publishers, catalogers, etc., which will be useful to library staff in the selection process. Requests from library users and suggestions from library authority are also considered. Okay. इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाइब्रेरी में सिलेक्शन किया जाता है बुक्स फॉर द कलेक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर विच मेनी एक्टिविटीज आर कैरीड आउट। ओके, इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती है। So selection of documents for library users.
is very responsible job and should be based on definite principle and accepted norms. तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग क्राइटेरिया यूज करके किया जाता है, और जो रिलेवेंट बुक्स है जो इफेक्टिव यूज हो सके, लाइब्रेरी का इफेक्टिव यूज कर सके, वही बुक्स सिलेक्शन किए जाते हैं. So for selection purpose, such a selection documents need the approval of the content authority before they are ordered for purchase in the library. तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो मेथड्स है वो यहाँ पर यूज की जाती है. फिर सिलेक्शन करने के बाद टेबल रिलेवेंट बुक हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसकी ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं. दिस प्रोसेस स्टार्ट विथ प्री ऑर्डर searching, especially to avoid duplicate orders. In the next stage, purchase orders are generated and placed either directly to the respective publisher to the list of vendors duly approved by the competent authority. Additionally, generations of reminders for overdue items, cancellation of orders also comes under the purview of ordering procedures. Okay. तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्डरिंग किस तरह से किया जाता है. और एडिशनली जनरेशंस ऑफ रिमाइंडर फॉर ओवरड्यूज आइटम्स, कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर्स आल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ ऑर्डरिंग प्रोसीजर्स. रिसीविंग इसमें आता है. रिसीविंग मीन्स आफ्टर डूइंग द ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स एंड इनवॉइस और बिल यूजुअली अराइव टुगेदर, उसमें आता है. बिल्स आर चेक्ड विथ ऑर्डर्स लिस्ट बिफोर प्रोसेसिंग or payment. Newly arrived books are tiled with bills and order list to check whether the books received are as per the orders, and the author, title, edition, imprints and price are correct before accessing. It is essential to ensure that books are not defective in any way before accessioning. Okay. तो इस तरह से बुक सिलेक्शन करने के बाद, ऑर्डरिंग करने के बाद बुक्स वेंडर के द्वारा लाइब्रेरी में आते हैं अलॉन्ग विद द बिल, अलॉन्ग विद द चेक लिस्ट. तो हमें चेक करने होते हैं, तो इसके लिए हमें रिसीव करना पड़ता है. तो हम बिल पे रिसीव की साइन देते हैं वेंडर को और चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बिल whether all the books are come properly or not properly, whether it is will come less or more. Okay, ज़्यादा या कम तो नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं. और फिर एक्सेशनिंग एक पार्ट आता है. एक्सेशन सेक्शन में एक्सेशनिंग पार्ट इम्पोर्टेंट है. आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर ordering, after all these doing all these things, we can, after receiving, we can access all the material, all the books in accession registers. Means we will do the entry according to the accession numbers.
इस तरह से एक्सेशनिंग जो रजिस्टर है हर एक लाइब्रेरी में होता है। जो जब से लाइब्रेरी स्टार्ट हुई तब से हम एक्सेशन रजिस्टर में बुक की एंट्री करते सीरियली और वही नंबर बुक को देते हैं, तो उसे एक्सेशन रजिस्टर कहा जाता है। एक्सेस टाइम, तो according to the numbers we will provide the next study materials. Suppose लाइब्रेरी में एक्सेशन रजिस्टर है, एक रजिस्टर होता है, उसमें स्टार्टिंग टू एंड सभी बुक्स उसमें एंटर किए जाते हैं। सपोज उसमें 6000 बुक्स है, ओके, और अभी हमने 100 बुक्स परचेज किए, तो 6000 से लेकर इस तरह से हम उसको नंबर देते हैं स्टार्टिंग से 6101 से लेकर 6100, ओके। लास्ट नंबर होता है और स्टार्ट नंबर होता है, ओके। पहले हमारे एक्सेशन रजिस्टर में 6000 बुक्स है और हमने 100 परचेज किए, अभी एक्वायर किए, तो एक्सेशन करते समय हम क्या करते हैं 6101 से स्टार्ट करते हैं और एंड कब तक होता है, फिर 6100 से एंड होता है, और सभी बुक्स हम एक्सेशन बुक में रजिस्टर कर लेते हैं, ओके। तो एक लाइब्रेरी का एक रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। हमारी लाइब्रेरी में कितने बुक्स है, कौन सी बुक्स है, कौन से ऑथर के, पब्लिशर वगैरह सभी डिटेल हमें यहाँ से मिलते हैं। ये दो प्रकार का रजिस्टर होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं, ओके। तो इसको एक्सेशनिंग कहते हैं। The register is called action register and the serial number of each document is referred to the action number, और इन नंबर को एक्सेशन नंबर कहा जाता है, इसको एक्शन रजिस्टर कहा जाता है और उसको सीरियल नंबर दिया जाता है, ओके। each document, action register is one of the important record of the library, important record रहता है और permanent record रहता है। all the above mentioned procedures and related activities of the acquisition subsystem can be mechanized through library management software। ये ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये हम यूज कर सकते हैं। All the above mentioned procedures and related activities of the acquisition subsystem can be mechanized through library management software. In such a system, these basic activities are linked with the files of publishers, suppliers, budget, fund, accounting, currency, etc. These files are maintained in computer readable form and are utilized appropriately, okay। तो इस तरह से इसमें सभी प्रकार के फंक्शन जो हमें एक्विजिशन में आते हैं वो इसके अंतर्गत दिए हैं और लेवल के अंतर्गत हमने इसका स्टडी किया। तो एक्विजिशन सेक्शन जब आपको पूछा जाएगा एक्विजिशन सेक्शन के बारे में, तो उसके अंतर्गत कौन सी सब एक्टिविटी चलती है, तो इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका उपयोग आपको थियोरेटिकली नॉलेज प्राप्त करने के लिए होगा, प्रैक्टिकली लाइब्रेरी में काम करने के लिए होगा, और एग्ज़ाम के लिए तो उसका उपयोग होगा ही होगा, ओके। तो अंडर एक्विजिशन सेक्शन विच कैन ऑफ द एक्टिविटीज़ आर कम, तो उसमें अल्टरनेट दिए जाएंगे, अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 सही होंगे, 1 रॉन्ग होगा, तो आपको रॉन्ग फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। और यदि
एक राइट है 3 रॉन्ग है तो 3 रॉन्ग फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, 2 रॉन्ग है 2 सही है तो 2 रॉन्ग फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, राइट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। इस पर सिंपल क्वेश्चन तैयार हो सकता है, यानी कि 1 वर्ड में आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कंपाउंड एंड थोड़ा डिफिकल्ट टिपिकल हो सकता है क्वेश्चन तैयार, और आउट ऑफ लॉजिक भी इस पर तैयार किया जा सकता है। क्वेश्चन हम कैसे तैयार करते हैं इस पर वो डिपेंड होता है, लेकिन आपको इसके बारे में पता है, इसके जो कंसेप्ट है आपके इस सेक्शन के क्लियर है, तो आपको सवाल किस तरह का भी पूछा जाए तो उसका जवाब आना चाहिए। तो इस तरह से एक्विजिशन सेक्शन किस तरह से काम करता है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अभी सेकंड जो सेक्शन है प्रोसेसिंग, जो हमने अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास किया। प्रोसेसिंग के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इस सेक्शन में कौन सा एक्टिविटीज़ होती है। प्रोसेस इसमें किया जाता है बुक्स जो एक्वायर हम करते हैं डॉक्यूमेंट। प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स इज द pivot around which all the housekeeping operations revolve in a library. Processing helps in transformations of library collection into serviceable resources. The procedures under these subdivisions are classifications, cataloging, labeling and solving. तो इसमें सभी आते हैं, क्लासिफिकेशन आता है, कैटलॉगिंग आता है, लेबलिंग आता है और सॉल्विंग आता है। लेकिन जनरली ओवरऑल ये अलग अलग सेक्शन हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग वगैरह वगैरह। परंतु प्रोसेस में इसमें क्या किया है, प्रोसेसिंग में ये सभी जो है कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, ये सभी उसमें अंतर्गत लिए गए हैं, लेकिन ये अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। ओके, तो आप उसका अलग अलग भी स्टडी कर सकते हो, प्रोसेसिंग के अंतर्गत भी स्टडी कर सकते हो। ओके, तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम होती है, यूडीसीए, डीडीसीए, कॉलम क्लासिफिकेशन है, एलसी क्लासिफिकेशन, एससी क्लासिफिकेशन है, यूडीसी है, उसके अकॉर्डिंग बुक्स क्लासीफाई किया जाता है। हम कौन सी स्कीम अपने लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर उस क्लासिफिकेशन स्कीम में बताई है उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो बुक और डॉक्यूमेंट को हम जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लास नंबर, कॉल नंबर वगैरह वगैरह देते हैं। और रैंडमली सब्जेक्ट वाइज तो हमें पता है, बाय फर्गेशन हम वो क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। द पर्पस फॉर क्लासिफाइंग आर डॉक्यूमेंट्स to help users to find documents whose call numbers. The class number represent the subject of book, while the book numbers individualize its among books on the same subject. To find out all the documents on given subject. Classification is mental process and demand intellectual exercise. From classifier, as a result, automatic synthesis of class numbers require application of artificial intelligence techniques in the development of software. In India, some research work on this topic has already been carried out at DRTC, Bangalore, for building class numbers automatically through softwares written in Prolog non-procedural programming language. The electronic version of DWAY is available on CD-ROM. तो ऑफलाइन जो उनके वॉल्यूम होते हैं, बुक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन सिस्टम भी अभी मौजूद है, ऑनलाइन सब्जेक्ट डाल के हम क्लास नंबर एक्वायर कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी आपको करना आ सकता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन करना ये कोई कठिन बात नहीं है।
We are the student of classifications, library information science, and we have learned this subject practically as well as theoretically at PG level. So that's why we know very well how to classify the book according to their subject and how we can provide class number and call number to the books. तो हमें इतना कठिन नहीं होता एज ए प्रोफेशनल करके, क्योंकि हमें पता होता है, हमें पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली किस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक को क्लास नंबर कॉल नंबर देना होता है. ओके, तो इसका क्या फ़ायदा होता है क्लासिफिकेशन का? व्हेन वी अप्लाई एनी काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम टू क्लासीफाई द documents in the library, then we will find a particular book on particular page for particular time for particular uses. So it will save the time, money, energy of readers. तो इसमें एनर्जी और टाइम का सेव और टाइम का वैल्यू हमें पता चलता है और वो सेव होता है, हम उसको सेव करते हैं रीडर का. तो उसके बाद कैटलॉगिंग आता है. लाइब्रेरी इज फर्स्ट टास्क इज टू असेंबल्स अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देन इट मस्ट कैटलॉग दैट कलेक्शन. Cataloging is the prime method of providing access to the collection of library. All these cataloging procedures start with technical reading of documents to be cataloged by studying title, subtitles, alternate title, author, editor, editions, reprints, imprints, dedication, preface, table of contents, collocation, series, bibliographies, etc. Okay. So in case of manual cataloging, the cataloger makes separate cards for author, title, subject, cross-reference, and analytical entries are by following standard catalog codes. तो जिस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज करके डॉक्यूमेंट क्लासिफाई किया जाता है क्लास नंबर देके, ठीक उसी तरह से कैटलॉगिंग कोड का इस्तेमाल करके अलग अलग कैटलॉग कार्ड तैयार किए जाते हैं. तो दोनों का क्या फ़ायदा होता है? तो क्लासिफिकेशन का उपयोग बुक और डॉक्यूमेंट क्लासिफाई करने के लिए होता है. तो इस तरह से प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर क्लास नंबर और प्रॉपर सेल पे जाता है और उसका कैटेगराइजेशन होता है. और कैटलॉगिंग का क्या उपयोग होता है? तो अलग अलग कैटलॉग कार्ड होते हैं बनाए ऑथर के नेम से, टाइटल के नेम से, पब्लिकेशन के नेम से. तो उनकी मदद हमें बुक फाइंड आउट करने में या सर्च आउट करने में होती है लाइब्रेरी में. तो उसकी मदद से हम बुक फाइंड आउट कर पाते हैं. ओके, तो इसलिए अलग अलग एंट्रीज बनाई जाती है अलग अलग टॉपिक को लेकर, तो उसको कैटलॉगिंग कहते हैं. तो कैटलॉगिंग ये दो प्रकार की होती है, एक ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमने पहले ही देखा. और इसमें और एक कैटलॉगिंग यानी कि रजिस्टर, जब हम एक्शन रजिस्टर करते हैं तो उसको भी कैटलॉग ही कहा जाता है, बिग कैटलॉग, यूनिवर्सल कैटलॉग. और अलग अलग इंडिविजुअल कैटलॉग बनाते हैं टाइटल वाइज, तो अलग कैटलॉग होता है. फिर उसके बाद लेबलिंग आता है. ओके, तो labeling, it is the work of pasting various label on different parts of documents
द फॉलोइंग लेबल्स आर जनरली पेस्टेड इन बुक्स। तो अलग अलग प्रकार के लेबल होते हैं। और अलग अलग प्रकार के लेबल यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ओके, स्पाइन लेबल उसमें होता है, दिस इज डन टू मेक कॉल नंबर्स combinations of class numbers and book numbers properly visible to the users when the book is sold. The size of the label is in the range of 1.25 multiply or by 1.25। तो उसकी साइज होती है लेबल की, उसके हिसाब से लेबल बनाया जाता है। ओनरशिप स्लिप रहती है, बुक्स के आगे रहती है ओनर स्लिप, जो लाइब्रेरी का नाम है उस पर डाला होता है और उस पर हम एंट्री करते हैं। These are generally pasted on the inner side of the front cover at left hand top of the corner पे होती है। Ownership marks are put at various part of documents। तो इसमें ओनरशिप इंडिकेट होती है। डेट स्लिप भी होती है जो ऊपर या पीछे लगाई जाती है, उसमें हम डेट एंट्री करते कब इशू हुआ बुक्स वगैरह मैन्युअली। तो उसकी साइज़ 5/3 होती है। ये साइज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। बुक पॉकेट होता है, उसमें कार्ड रखा जाता है, पीछे लगाया होता है कवर पे। बुक पॉकेट ऑन द बॉटम ऑफ द इनर राइट साइड ऑफ द फ्रंट और बैक कार्डबोर्ड कवर बुक पॉकेट इज पेस्टेड। आगे और पीछे ई बुक्स लगाया होता है। बुक कार्ड इसमें होता है, बुक कार्ड हम रखते हैं। तो बुक कार्ड में क्या होता है, बुक कार्ड वन प्रिंटेड हैंड रिटन बुक्स कार्ड, साइज उसकी 5/3 होती है। इट इज पुट इन द बुक पॉकेट ऑफ ईच बुक। इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट वेरियस लेबल आर प्रिंटेड by using library management software. In case of barcode based computerized circulation, accession numbers of documents are converted into barcodes and print out of barcodes are pasted in a back cover of the document। तो बुक कार्ड में आपको सभी को पता होगा, बुक कार्ड आपको दिखाया होगा एज प्रैक्टिकली। तो उसमें ऑथर का नेम वगैरह सब इंफॉर्मेशन हेडर पर दिया जाता है, और नीचे जो होता है बिटवीन, तो उसमें सभी एंट्रीज होती है कि टाइटल वाइज एंट्रीज, सीरियल नेम, टाइटल नेम, इशू डेट वगैरह वगैरह, और साइन, ऐसा उसमें कॉलम होते हैं। तो हमें वो भरने पड़ते हैं। ओके, उसे बुक कार्ड कहा जाता है। फिर शेल्विंग इसमें आता है। सब इस तरह से लेबलिंग होने के बाद बुक कार्ड, बुक पॉकेट, डेट स्लीव, ओके, और भी कुछ स्टैंपिंग वगैरह करके सब बुक रेडी हो जाता है। फिर रेडी करने के बाद उसे शेल्विंग किया जाता है अकॉर्डिंग क्लास नंबर्स। शेल्विंग इज द अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द शेल्फ टू फुलफिल द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेव टाइम ऑफ द रीडर्स। जनरली बुक्स आर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ and classify readers as per the call numbers. Bound volume of periodicals are generally shelved alphabetically by the title, then volumes of numbers। okay, तो उसको शेल्फ किया जाता है। और शेल्विंग करने के बाद हम उसका यूज करते हैं। सर्कुलेशन में मोस्ट लाइब्रेरीज lent book and other library materials to be read elsewhere by users। okay, सर्कुलेशन में क्या आता है, तो सभी बुक्स एक्वायर करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद सेल्फ पे रखा जाता है। फिर यूजर डायरेक्टली वो बुक्स का यूज करने के लिए आते हैं। जैसे कि होटल का एक एग्जांपल, हम लाइब्रेरी के एग्जांपल को सिमिलर ले सकते हैं। जे खाना खाने कस्टमर आते हैं और होटल में आते हैं, फिर सुबह सुबह खाना तैयार नहीं होता तो नाश्ता तैयार करते हैं। नाश्ता रेडी होने के बाद ही यूज़र को दिया जाता है।
और उसके पहले तो वो फिर प्रिपरेशन करते हैं, नाश्ता तैयार करने की प्रोसेस और खाना तैयार करने की प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद तैयार होने के बाद ही वो यूटिलाइज या यूज होता है, उससे पहले नहीं होता। और ठीक उसी तरह से लाइब्रेरी का भी एक उदाहरण है कि यूजर को बिफोर प्रोसेसिंग बुक नहीं दिया जाता, जब पूरा प्रोसेस हो जाता है बुक का और शेल्फ पे रखा जाता है तभी वो यूज कर सकता है, सर्कुलेशन पर्पस के लिए उसका यूज हो सकता है। ओके, मोस्ट लाइब्रेरी लेन बुक एंड अदर materials to be read elsewhere by users. So this convenient for the users, एक यूजर के लिए कन्वीनियंट होता है कि किस तरह से बुक्स का यूज किया जाता है। ओके, और this is convenient for the users, this increase the use made of library collections and reduce the demand on reading space within library building. These functions require some sort of records keeping what has been lent and to whom. The reason for keeping loan record are okay. तो उसमें क्या क्या होता है? To minimize the loss of library materials and help library staff to answer users queries about the location of item not on the shelf। इस तरह से लोकेशन लाइब्रेरी ऑफ स्टाफ करके इसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। वैरायटी ऑफ सिस्टम फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ लोन्स हैव कम इनटू बीइंग बेस्ड ऑन नीड्स। Variety of system for record keeping of loan have came into being based on need. These are known as circulation system. These involve some common jobs for successful implementation such as enrollment of members, issue returns of library documents, reservation documents, renewal documents, maintenance of documents and records. So maintenance of statistic and interlibrary loan, issuing of gate pass etc. तो सर्कुलेशन में अलग अलग प्रकार की बुक्स इशू की जाती है। सर्कुलेशन प्रोसेस कैसी होती है? जो बुक यूजर को चाहिए होता है शेल्फ से निकालता है या कोई लाइब्रेरी स्टाफ हमें निकाल के देता है, फिर हम इशू काउंटर पे जाते हैं और फिर ऑफलाइन इशू करते हैं हमारे नाम पे या कार्ड पे, बोरोइंग कार्ड पे, या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से इशू करते हैं, फिर ओन हमको स्लिप देते हैं और गेट पर हम जाते हैं तो वापस जमा करते हैं। RFID टेक्नोलॉजी होगी तो ऑटोमेटिक वो होता है या ऑटोमेशन उसमें होता है, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर होती है, फिर हम बुक लेकर बाहर जाते हैं। RFID की रचना होगी तो उसमें क्या होता है, बुक इशू रिटर्न ऑनलाइन होता है, इशू होता है, फिर बुक हम लेके जाते हैं तो गेट पर वो बजर नहीं बजता, फिर हम बाहर जाते हैं। और यदि विदाउट इशू हम बुक लेकर जा रहे हैं बाहर तो बजर बजता है गेट पर, RFID जो सिग्नल होता है वो इंडिकेट करता है यू आर नॉट इशू द बुक्स। तो इस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन का काम चलता है। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है ऑलरेडी सेटअप की हुई और यूजर प्रोफाइल होती है, तो दोनों वहाँ पर मैच होनी चाहिए। तो यूजर प्रोफाइल ओपन करके डॉक्यूमेंट प्रोफाइल उस पर डाली जाती है और उसके नाम पर वो बुक इशू किया जाता है। फिर इसको एक स्लिप मिलती है, बोरोवर फाइल्स उसको हम कहते हैं या स्लिप कहते हैं, बोरो। So in this way circulation is most important, and how we can circulate the books we have learned about that. There is a certain procedures for circulation the books. सर्कुलेशन की एक अपनी मेथड होती है जिसके अंतर्गत हम बुक सर्कुलेट करते हैं। बुक सर्कुलेशन यानी कि क्या, जब यूजर लाइब्रेरी में आते हैं तो हम बुक्स उनको इशू करते हैं या रिटर्न करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, बुक का एक सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन प्रोसीजर के कोई रूल और रेगुलेशन होते हैं
लाइब्रेरी के वो यूजर को फॉलो करने होते हैं। इसमें क्या होता है, बुक्स कितने दिन इशू हो सकता है और कितने बुक्स आप इशू कर सकते हो और लाइब्रेरी की बुक कौन इशू कर सकता है, ये सब उसमें आता है। ओके, और फिर यदि वह नियम में बैठता है तो बुक सर्कुलेशन वहाँ पर किया जाता है। ओके, और फिर बुक सर्कुलेशन के बाद फिर रिटर्न करने आता है, फिर इशू करता है। इस तरह से वो सर्कुलेशन या सर्कल चलते रहता है, कंप्लीट होता है, और इसीलिए उसको सर्कुलेशन कहा गया है। तो ये सभी जो प्रोसेस है सर्कुलेशन में चलती है लाइब्रेरी के, और उसको ही हम सर्कुलेशन कहते हैं, राइट। तो आफ्टर सर्कुलेशन serial control is there. So serial control means those books are published serially or by specific period, that is called the serial. Okay, and all kinds of the magazines are come under this serial control or come under this section, so that is why it is called the serial control. Okay, so what kind of the situation, what kind of the activities are come under this serial control? Means we can acquire the same like book, journals in our library, but there is a certain procedure, certain methods will be used there. Okay, so which kind of the method will be used there, we will learn this. Serial in general and periodicals in particular are essentially for research and development activities. So why we are acquiring the journals and periodicals, okay, for library? So there are many students, those who are doing research for their using purpose, we can acquire journal or journals and periodicals in the library. So these are primary means of communication for the exchange of scientific information. The periodicals or journals subscribed by libraries can be grouped into following categories. Okay, तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज वहाँ पर तैयार की जाती है। द पीरियोडिकल और जर्नल सब्सक्राइब बाय लाइब्रेरीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज में वो कैटेगराइज किया जाता है। उसमें इंडेक्सिंग आता है, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल आता है, पीरियोडिकल कंटेंट न्यूज़ आइटम आता है, न्यूज़ पीरियोडिकल कहते तो जिसको हम ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर इसमें आते हैं। और पीरियोडिकल कंटेनिंग फुल टेक्स्ट रिसर्च आर्टिकल इसमें आता है। ओके, अब्स्ट्रैक्टिंग का अलग, जैसे अब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस होता है, फुल टेक्स्ट डेटाबेस होता है, उस तरह से ऑफलाइन में भी दो प्रकार के जर्नल्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग डेटाबेस और फुल टेक्स्ट डेटाबेस। ओके, फुल टेक्स्ट जर्नल्स। एक्विजिशन ऑफ सीरियल और पीरियोडिकल्स इन लाइब्रेरी इज डिफरेंट फ्रॉम द बुक ऑर्डरिंग सिस्टम। जिस तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि बुक ऑर्डरिंग और जनरल जिसे हम पीरियोडिकल कहते हैं ऑर्डरिंग, उसमें टोटली डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कैसे होता है देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू बुक्स द लाइब्रेरी रेगुलरली सब्सक्राइब पीरियोडिकल अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। ओके, तो बुक्स वन टाइम परचेज होता है और परचेज करने के बाद उसे रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वन टाइम लाकर हम अपने लाइब्रेरी में रख सकते हैं। ओके, परंतु पीरियोडिकल या जर्नल का वैसा नहीं होता है, उसका सर्कुलेशन या सब्सक्रिप्शन बेस होता है पेमेंट। तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर न्यू सब्सक्रिप्शन हमें उसका लेना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो पेमेंट्स हर सब्सक्रिप्शन हमें पेड करना पड़ता है। तो जिस तरह से जर्नल्स या पीरियोडिकल सर्कल में पब्लिश होता है पीरियोडिकली, ठीक उसी तरह से हमें भी पेमेंट सर्कल में करना होता है। आफ्टर 1 ईयर वी कैन रिन्यू इट, आफ्टर 1 ईयर वी कैन रीसब्सक्राइब इट। ओके, फिर से हमें सब्सक्राइब करना होता है। तो ये डिफरेंट मेथड दोनों में होती है। थ्रू वेंडर, लोकल वेंडर, सब्सक्रिप्शन एजेंट के द्वारा हम ये सब करते हैं।
तो फॉरेन वेंडर सब्सक्रिप्शन एजेंट, तो जर्नल जिस प्रकार का है उस लेवल पर उसके वेंडर होते हैं। नेशनल लेवल पे नेशनल जर्नल का नेशनल लेवल का वेंडर होता है, इंटरनेशनल लेवल का वेंडर होता है। डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिशर से भी हम परचेज कर सकते हैं, एज गिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं, थ्रू मेंबरशिप इंचार्ज कर सकते हैं। फंडामेंटल टास्क ऑफ एनी सीरियल कंट्रोल सिस्टम मैनुअल और मैकेनिज्ड कैन बी लिस्टेड एज बिलो, तो उसमें एज बिलो लिस्टेड होती है। तो सिलेक्शन ऑफ सीरियल होता है, उसमें सिलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन मोड होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ टर्म होता है, प्रोक्यूरमेंट होता है, सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स होता है, ऑर्डर एडवांस पेमेंट होता है, रिसीविंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियल इश्यूज इज इन कार्डेक्स होता है, सेंडिंग रिमाइंडर इन केस ऑफ इश्यू नॉट रिसीव्ड उसमें होता है, एडजस्ट ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ मिसिंग इशू होता है, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट सब्सक्राइब जर्नल्स इसमें होता है, न्यू अराइवल एंड सीरियल होल्डिंग इसमें होता है, कंसल्टेशन बाय यूजर्स होता है, बाइंडिंग एंड एक्सेशनिंग ऑफ बैक वॉल्यूम सीरियल होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार जर्नल में किया जाता है। बैक वॉल्यूम भी हम परचेज कर सकते हैं, उसका बाउंड वॉल्यूम बना सकते हैं और हमेशा के लिए लाइब्रेरी में रख सकते हैं कि ताकि स्टार्टिंग से एंड तक लोग उसको पढ़ सके, जर्नल का इस्तेमाल हो सके। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं मेंटेनेंस एक आता है इसमें, इफ वी डोंट टेक प्रॉपर केयर टू ऑर्गेनाइज टू एडमिनिस्टर द लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली, these documents would become unserviceable resource immediately. The workflow of the maintenance division section include the following task. तो मेंटेनेंस में क्या होता है, जो सभी प्रकार के सेक्शन हमने यहाँ पर देखे, तो सभी प्रकार के सेक्शन की जो एक्टिविटी चलती है तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ कंप्लायंस होते, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो उनका मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है और मेंटेनेंस हर तरह का होता है, जैसे कि रूम और ऑफिस का मेंटेनेंस अलग तरह से किया जाता है, क्लीनिंग करके वगैरह। सॉफ्टवेयर का अलग तरीके से किया जाता है, तो अलग अलग मेंटेनेंस इसमें आते हैं। वी डोंट टेक प्रॉपर केयर टू ऑर्गेनाइज an administrator of library documents regularly, these documents would become unserviceable resource immediately. यदि हमने डॉक्यूमेंट का केयर नहीं किया तो क्या हो सकता है, अनसर्विसेबल हो जाती है। सपोज लाइब्रेरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कीटक वगैरह आ सकते हैं, फंगीज क्रिएट हो सकती है, डस्ट उन पे आते हैं, तो हमें उसका यूज़ करना कठिन हो जाता है। ओके, टॉन हो सकते हैं, आग लग सकती है, या फिर वाटर उस पर गिर सकता है। तो इन सभी जो नेचुरल hazard है और जो आर्टिफिशियल hazard है ह्यूमन के द्वारा होने वाली, इन सभी hazard से हमें लाइब्रेरी को बचाना होता है या प्रोटेक्शन उसका करना होता है। तो ये सभी बातें मेंटेनेंस में आती है। सेल्फ रेक्टिफिकेशन हमें करना होता है, यानी बरोबर लगाना होता है ताकि बच्चों को और यूजर को अच्छा उसका इस्तेमाल कर सके। इट इज़ टू शेल्फ misplaced document in proper location, बाइंड करना होता है। इट इज़ अ प्रिजर्व लाइब्रेरी रिसोर्स फॉर फ्यूचर्स एंड प्रेजेंट यूज। रिप्लेस करना होता है, यदि कोई बुक्स ज़्यादा ही टर्न हो गया तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। इट इज़ रिप्लेस लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बाय द लाइब्रेरी। डिस्कार्ड विदड्रॉन्स, इट इज़ टू वीट आउट dated and torn solid documents from the library. Okay, the integrated library automations environment requires information on host, lost, demat, missing and withdrawn documents as well as documents sent for binding. These databases are to be entered to generate and display appropriate message for the library users, staff against specific tasks,
in different models. This is also required to generate report on lost books, missing books, books sent for binding, etc. for library administration. Okay. तो किस तरह से बुक का यूज होता है, बुक सिलेक्शन हम करते हैं, रिप्लेस करते हैं वगैरह वगैरह, इससे भी उसमें आते हैं। मेंटेनेंस में कौन सी एक्टिविटीज आती है? रेक्टिफिकेशन आता है, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, बाइंडिंग आता है, रिप्लेस आता है। यदि कोई बुक ज़्यादा टॉर्न हो गया होगा, फट गया होगा, तो उसे हम बाइंड करते हैं अच्छी तरह से। ओके, डैमेज हो गया होगा तो उसको बाइंड करते हैं, और सम टाइम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, डिस्कार्ड विड्रॉन भी कर सकते हैं यदि उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। दोज बुक्स आर नॉट relevant to new syllabus, they become outdated and they become old, so that's why such a kind of books we can't discard, withdrawn from library collection. Okay, तो ये सभी मेंटेनेंस में आता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सेक्शंस वी कैन डू मेंटेनेंस by doing or repairing the softwares. Okay. So integrated library automation environment require information on lost, damaged and missing and withdrawn documents, as well as documents sent for binding. These database are to be entered to generate and display appropriate message for library users and staff against specific tasks in different modules. So this is also required to generate reports on lost books, missing books, books sent for binding, etc. for the library administration. Okay, तो इस तरह से सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं इसमें की जाती है। तो इस तरह से हमने हाउसकीपिंग ऑपरेशन में कौन से एक्टिविटीज आती है, कौन से ऑपरेशन आते हैं, कौन से फंक्शन आते हैं, इस पर हमने चर्चा की। बेसिकली लेसन नोट के थ्रू हमने देखा कि उसमें एक्विजिशन, प्रोसेसिंग आता है, लेकिन प्रोसेसिंग में कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, लेबलिंग, ये तीनों उन्होंने लिए हैं और मेंटेनेंस अलग है। लेकिन हमने हर एक फंक्शन वाइज यहाँ पर देखा है कि एक्विजिशन अलग है, प्रोसेसिंग अलग है, कैटलॉगिंग अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है, और फिर सर्कुलेशन अलग है। कुछ लाइब्रेरी में प्रोसेसिंग, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन और क्लासिफिकेशन एक ही सेक्शन होता है, सर्कुलेशन अलग होता है, रेफरेंस अलग होता है, सीरियल कंट्रोल अलग होता है। ओके, और कुछ लाइब्रेरी में ये अलग अलग, पूरे अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो ये लाइब्रेरी पर डिपेंड है कि हम कितने हाउसकीपिंग ऑपरेशन के द्वारा लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, फंक्शन चलाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं। तो लाइब्रेरी का स्पेस वगैरह, इस पर ये सब डिपेंड रहता है। ओके, तो लाइब्रेरी ऑपरेशन के बारे में, लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में यदि आपको कोई भी सवाल आए तो ये फ्लो चार्ट आप हमेशा अपने आँखों के सामने रखना, ताकि इस पर कोई भी सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्ज़ाम में आता है, तो उसका जवाब आप तुरंत दे सकते हो। एक्विजिशन के अंतर्गत कौन सी प्रोसेस आती है, प्रोसेसिंग के अंतर लेबलिंग मेन होती है, कैटलॉगिंग के अंतर बुक एंट्री करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन में इशू रिटर्न होता है, सर्कुलेशन में इशू रिटर्न होता है, और क्लासिफिकेशन में बुक क्लासिफाइड होते हैं, रेफरेंस में बुक रेफर किया जाता है, सीरियल में जर्नल और मैगजीन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अभी जो आगे का जो टॉपिक है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। ओके, सो प्रिजर्वेशन का मतलब है जतन करना। ओके,
संभाल कर रखना। कंजर्वेशन का मीनिंग है टू ग्रो, संवर्धन करना, ओके, उसको बढ़ावा देना, डेवलप करना। सो प्रिजर्वेशन ऑफ मीनिंग इन लाइब्रेरी, आर्काइवल और म्यूजियम कलेक्शन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग spiritual, ritual or cultural perceptions of value, specific object, ensuring these value are maintained and respected। तो इन सभी बातों का ख्याल इसमें रखना पड़ता है प्रिजर्वेशन में। बुक्स related on different types of varieties like spiritual, ritual, cultural। लाइब्रेरी केवल लाइब्रेरी से संबंध नहीं होता, तो उसका जो नाता है स्पिरिचुअल से होता है, रिचुअल से होता है, कल्चरल एक्टिविटीज से होता है। तो इस तरह से लोक भावना लाइब्रेरी से जुड़ी हुई होती है, ओके। तो हमें लाइब्रेरी का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। हम अपनी मन मुताबिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते या उसके संदर्भ में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि लाइब्रेरी के संबंध में अनेक लोगों का जो हित संबंध है उससे जुड़े हुए रहते हैं। यूजर का कनेक्शन या रिलेशन उससे होता है डॉक्यूमेंट से, तो उससे लोक भावनाएं जुड़ी हुई होती है। तो वी कांट टेक इमीडिएटली डिसीजन रिगार्डिंग द बुक्स कलेक्शन वगैरह वगैरह। जो बुक्स कलेक्शन में है उसे हम अपनी हिसाब से नहीं निकाल सकते। हमें लगता है एज ए लाइब्रेरी करके कि बुक्स आउटडेटेड हो चुकी है तो निकाल कर हम फेंक देते, रद्दी में बेच देते, तो ऐसा डिसीजन हम कदापि नहीं ले सकते, ओके। सो meaning is something assigned to be object of cultural and spiritual significance based on interpretation and perceived value by users, population, process known as a social construction of objective। So my assignment is to make presentation on preservation and conservation of library materials. So this lecture is give the meaning of preservations and conservation। This preservation or presentation, however, cannot be discussed without briefly discussing the nature of judicial conserve, bearing in mind how custodians of information prevent its collection from damage by accomplish the preservation and conservation strategy, its importance, the agent of deteriorations, how to preserve collection, who is responsible for collection, knowing activities involved preservation, the possible challenge judicians librarian counters before after collection and proffering suitable suggestion overcome these challenges। तो लाइब्रेरी का जब हम विचार करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेशन आता है, कंजर्वेशन आता है। जैसे कि हमने कहा कि मन मुताबिक हम लाइब्रेरी के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जो पुराने बुक्स है, आउटडेटेड बुक्स है, उसे निकाल कर भी नहीं फेंक सकते या रद्दी में बेच सकते। तो उस पर एक कमेटी बैठती है, लाइब्रेरी कमेटी। तो वो डिसीजन लेने के बाद ही हम उसका इस्तेमाल कैसे करना, क्या करना, या अलग तरीके से प्रिजर्व करना, आर्काइव में प्रिजर्व करना, इस तरह का डिसीजन हम वहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रिजर्वेशन यानी कि क्या और कंजर्वेशन यानी कि क्या, इसके बारे में एज अ कंसेप्चुअल मीनिंग हमने यहाँ पर देखा। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमारो। थैंक यू।